की जय। भारत माता की। दोस्तों, माई मिस्टेक चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में, जो कि केवी स्कूल में लगी हुई है। उसका उद्घाटन, ओपनिंग सेरेमनी सभी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। कितना बढ़िया जो है सजाया गया है। छोटे छोटे बच्चे प्रोजेक्ट बना के लेके आए हैं। बड़ा मतलब भारत को आगे कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, वो सब इस प्रदर्शनी में आपको देखने के लिए मिलेंगे। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनका दिमाग कितना हाई लेवल का है। चलो देखते हैं और प्रोग्राम शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपकी तालियों की गहराहट से ऐसा लगना चाहिए कि आप सब उसी एनर्जी के साथ इस हॉल में उपस्थित हैं। So with the due permission, can we start now? A new dawn has arrived, a new dream has taken flight, where young minds shine bright and science become their guiding light. Good morning to everyone. With great joy and pride, in the serene and green surrounding of KVIIT Kanpur, I, on behalf of Kendriya Vidyalaya IIT Kanpur, welcome you all to KVS Regional Level Rajya स्तरीय Bal Vigyan Pradarshini. With this heartfelt welcome, we begin a day dedicated to scientific thinking, innovation, and young minds full of wonder. Our Bal Vigyan Pradarshini is not just an exhibition, it is celebration of learning by doing. Now, I hand over mic to our young budding anchors, Maya, 11th E, and Adityapan, 11th B, who will take us through the exciting events of today's program. Robert A. Heinlein once said, "Everything is theoretically impossible until it's done." Today, you will be able to witness the truth of his words through the innovative new ideas put forth by the budding scientists of KVS Lucknow region. Greetings to all. On behalf of Kendriya Vidyalaya IIT Kanpur, we would like to extend a warm welcome to our highly esteemed chief guest, Dr. Deepu Philip, Department of Management Sciences, IIT Kanpur, guest of honor, Mr. Anup Awasthi, Assistant Commissioner, KVS Lucknow region, our distinguished judges and guests. It is truly an honor to have you all gathered here. Now, before we commence, let us invoke Saraswati, the goddess of wisdom and knowledge, through the lamp lighting ceremony. So, I humbly request our honorable chief guest to join us on stage to light the lamp and inaugurate the function. विद्यां देवी नमोस्तुते। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा को प्रणाम करते हुए आज की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के पूर्व उनकी वंदना के लिए मैं समूह को आमंत्रित करता हूँ।
वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे। बहुत अच्छी प्रस्तुति बच्चों। ऐसे ही मां सरस्वती का आशीर्वाद हम पर बना रहे, हम ये आशा करते हैं। अतिथि देवो भवा। भारतीय परंपरा के अनुसार मेहमान भगवान का रूप होते हैं और आज मैं अपने प्राचार्य श्री रवीश चंद्र पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे अतिथियों का हरित स्वागत से सम्मान करें। कोमल स्पर्श जब दोनों साथ आते हैं तो स्वागत और भी सुंदर बन जाता है, और अगर तालियों में थोड़ी सी गर्माहट हो तो स्वागत और भी अच्छा लगता है। आपकी तालियां ये बता रही हैं कि केंद्रीय विद्यालय के बच्चे कितने उत्साहित हैं। Along with the plant saplings, we present a traditional bouquet symbolizing warmth, honor, and heartfelt respect to our dignitaries. Now we extend our warm welcome to our respected Assistant Commissioner Anup Awasthi sir. A small gesture shows our love and dedication. A memento to show our token of love. एक बार जोरदार तालियों से हम फिर से अपने मुख्य अतिथियों का स्वागत करेंगे। हर विशेष अवसर एक मधुर शुरुआत की मांग करता है। इसी मधुरता को मंच पर लाने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सुरों के कलाकारों को, जो स्वागत गान प्रस्तुत करेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। What a performance! And such a beautiful way to welcome our guests deserves an even bigger round of applause. Now, in order to extend a formal welcome to all, I invite our respected principal sir once more onto the stage. Sir. Thank you, Aditya and Meera. At the outset, a very warm good morning to the chief guest of your visit, Professor Deepu Philip ji, and our guest of honor, Shri Anup Awasthi sir, Assistant Commissioner, KVSRO Lucknow, all the learned students and worthy teachers. Along with this warm welcome, warm morning wishes, I also welcome you all in this August Hall, Lecture Hall, number 7 of IIT Kanpur. Indeed, it is a privilege to us at KVIT Kanpur, from the regional office Lucknow side, to provide us this opportunity to host such a valuable, such an important event in the field of science and technology, that is Kendriya Vidyalaya Sangathan regional level, state level Rashtriya Bal Vaigyanik Pradarshani. More precisely, Rajya स्तरीय Bal Vaigyanik Pradarshani. First, I would like to clear this nomenclature a bit to all the participants. For that, we must know the structure of this whole event.
it is a flagship program of NCERT, and every year they hold the culmination level event, the highest level event, with the name of Rashtriya Bal Vaigyanik Pradarshani. So we are in the part of this multi-layer event, which will culminate as 53rd Rashtriya Bal Vaigyanik Pradarshani. Now, since it is an inter-state competition, different states conduct such Bal Vaigyanik Pradarshani in their states, and then they participate in this Rashtriya Bal Vaigyanik Pradarshani. So, my dear students, it is proud for us that whole KVS is also taken as at par with any other state. So we participate in this, we will be participating in this 53rd Rashtriya Bal Vaigyanik Pradarshani as a state, right? So since state level exhibitions will be held, so that is why it is Rajya Stariya Bal Vaigyanik Pradarshani 25-26. Now we are a vast organization, so managed by 25 regions. So that is why first we conduct regional level Pradarshani, and then the KVS national level Pradarshani, which will be actually Rajya Stariya Bal Vaigyanik Pradarshani for us. So this is the setup. So it is indeed a privilege for us that we have been given this opportunity, and for that I thank our respected Deputy Commissioner Madam and Assistant Commissioner Sir and Madam at Regional Office Lucknow. Would like to give a brief intro of this event and overall participation going to held today and tomorrow, and this KV has missed out in participation in this event. That is another remarkable achievement. So for that I congratulate all the students and their teachers who have joined here in this exhibition. And we are participating with a good strength. Total 154 boys and 81 girls are participating in this event with 195 projects and 39 participations in seminars. So now, in these 2 days, we all are sure that we are going to see your wonderful ideas which are getting implemented in the form of or converted in the form of your projects. So those innovative and creative ideas will definitely take the shape of startups or some other devices and will ultimately benefit the society. So to have our chief guest is really a privilege for all of us. Professor Deepu Philip ji is a very versatile personality. Sir, really thanks to you for sparing some time from your very busy schedule, I know. And to our AC sir also, I heartily welcome him as well, because he has traveled right early in the morning from Lucknow just to be with us, to observe this event and to supervise as well. So with these words, I welcome the chief guest of honor, all the learned and bright students and their worthy teachers in KVIT Kanpur for this 2 days event. Best wishes. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, sir, for your kind welcome and such a useful information. भारत विविधताओं का देश है, जहाँ हर राज्य, हर संस्कृति आनंद और अभिवादन का प्रतीक रहा है। अब हम उसी सांस्कृतिक धरोहर को मंच पर देखने जा रहे हैं, एक मनोहारी नृत्य के रूप में। कृपया उच्च करतल ध्वनि से कलाकारों को प्रोत्साहित करें। जल है तो कल है। जल के साथ दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि जल है जीवन का आधार। बहुत सारी बातें हम सुनते हैं ना जल के बारे में। अगर हम ये कहें कि जल और जीवन एक दूसरे के प्रतिरूप हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं है। यानी जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। चूंकि विज्ञान प्रदर्शनी है और इसका एक मुख्य विषय जल भी है, तो अभी जो प्रस्तुति होने जा रही है वो जल पर आधारित है।
इस नृत्य का आप आनंद लीजिए। हो नदियां नीर से भरी, हो नदियां नीर से भरी। अद्भुत प्रस्तुति, जोरदार तालियों से इनका प्रोत्साहन कीजिए। As we all know, we are here today for the KBS To regional. share their blessings and guide us to their valuable thoughts. Sir, please. A very good morning to one and all present over here. Respected Chief Guest of the occasion, Professor Deepu Philip ji, erudite principal of this KB, Mr. R.C. Pandey, learned teachers and budding scientists. It's indeed a proud moment for all of us to be with you, those who are going to lead this nation in making Vikasit Bharat in true sense. Dear students, as you know that we are living in a world where aspirations are very high. From every corner of this globe, they are looking up to us, not only in the field of science, but in the field of humanitarian activities also. Hearing me, God bless you all. Thank you so much, sir. I hope students must have listened and they will realize the sir has told that. Good morning, everyone. So, it's a full lecture hall L7. It's very rarely we get to see full L7. So, I'm from Kerala, so my Hindi is quite bad, but I'll try. Okay. आप लोगों को हंसी मजाक का थोड़ा opportunity मिल जाएगा. So anyway, it brings me when I was a student, मैं भी science exhibition में participate करता था. पहले I will keep it very quick, simple. तो उस टाइम में स्पीच कंपटीशन होता था, इनोवेटिव आइडिया लेके. तो टॉपिक दिया था, आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे. एक स्टैंडर्ड में था, I believe 8 or 9. मैं सोचा कि कुछ अलग ही करें. बाकी सब लोग बोलते हम रोड बनाएंगे, हवाई अड्डा बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. What I told was, मैं शादी करेंगे. So then I explained कि लड़की ढूंढना पड़ेगा. तो विलेज लेवल ब्यूटी कॉन्टेस्ट होगा, से फिर ब्लॉक लेवल होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल, स्टेट से नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, फिर नेशनल लेवल, पूरा दूरदर्शन टेलीकास्ट करेगा, उसका एडवर्टाइजमेंट से पैसा मिलेगा. गाली मिला मुझे. But logic is that it's what I call as, आज आप लोग करने जा रहे हैं, आपको दुनिया बदलना है तो अलग सोचना पड़ेगा. So today you see the word STEM written here, STEM, science, technology, engineering, mathematics. So science होता क्या है? So हम भी, my exhibition topic was aluminum extraction plant. One of them. And I went to our regional level or something, I have no clue where I forgot. But I remember the exhibit because पढ़ के हाथ से बनाया था. So science is a lot of the time about knowledge. तो न्यूटन के सर पे एप्पल गिर गया, उन्होंने फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वेशन बनाया, हम लोगों को बदनसीबी पढ़ना पड़ रहा है. At the same time, if as an engineer, how will I utilize it? I have to design a rocket to escape the Earth's gravitation. So I have to find out how much of propellant should be put it in, what rate it should burn, so that I can go past the 9.8 meter per second square acceleration, so that I escape the gravitational pull of the Earth
and goes outside the Earth and put a satellite into orbit. So knowledge को एक प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी में बनाने के लिए और एक नीड को एड्रेस करने के लिए आप जो करेंगे उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं. टेक्नोलॉजी इज अबाउट कन्वर्टिंग नॉलेज टू प्रोडक्ट और सर्विस. नाउ आप करने के लिए आप बोलना बहुत आसान है, कैसे करते हैं. सो आई रिमेंबर कपल ऑफ माई टीचर्स, वेरी गुड टीचर्स, टॉट मी फ्यू थिंग्स. तो आप सुबह सुबह उठ के हर दिन उठने के बाद सोचते दुनिया बदलते हैं, आज ही कर ले, क्यों नहीं. तो पहला क्या करना चाहिए. सो द आंसर दैट वाज गिवन टू मी वाज बाय वन ऑफ माय mentors, Admiral William McRaven. He says in many of his speeches, सबसे पहले उठ के आप अपना बेड बनाएं. Make your bed properly. आपका दिन कैसे भी होगा, अच्छा दिन होगा, बुरा दिन होगा, गाली सुनेंगे, पत्थर खाएंगे, कुछ भी हो, शाम पे वापस आके आपने खुद बनाया बेड में आप लेट के सो सकते. सिंपल फिलॉसफी, बट उसी को बोलते हैं सेफ्टी नेट. आपका सब गड़बड़ हो गया, तभी भी आपके पास कुछ तो बचे. वो पहले सोचना पड़ेगा. सो फर्स्ट वन ऑफ द वेज टू थिंक अबाउट. दूसरा इज दैट आप लोग एक कहानी सुना होगा कि एक चिड़िया चल रहा था, लेट्स टेक अमेरिका के ऊपर चल रहा था, वो ठंडी थी, उसकी विंग्स वर फ्रोजन, वो गिर गया. उसके बाद एक काऊ ने आके उसके ऊपर काउडंग डाल दिया, फिर वो गर्म हो गया. गर्म होने की वजह से वो गाना शुरू हो गया. एक फॉक्स आके उसको खा लिया. ये हर्ड दिस स्टोरी, सुना है? नहीं सुना है? सुना है? नो सुना. ओके, अगर मैं बता दूंगा. एक चिड़िया था, वो ऐसे ही अमेरिका के ऊपर फ्लाई कर रहा था. वो ठंडी का मौसम था. ठंडी में आप बिना कपड़ा से फ्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, ठंडा हो जाएगा. तो आपका विंग्स फ्रोजन हो गया, नीचे गिर गया, स्नो में गिर गया. तो उधर बैठ के कांप रहा था ऐसे. तो क्या हुआ कि गाय उधर बगल में खड़े थे. गाय उसके ऊपर थोड़ा काउडंग डाल के चले गई, डर्ट डाल के चले गई. तो काउडंग इज यूजुअली वार्म. तो चिड़िया बिकेम अनफ्रोजन, उसका विंग सब चलना शुरू हो गया. तो खुशी में उन्होंने गाना शुरू कर. तो बगल में एक हंग्री फॉक्स घूम रहा था. फॉक्स हिंदी में क्या, लोमड़ी. उन्होंने सुना इधर से कोई गा रहा है, क्या है, जाके देख लिया तो एक चिड़िया पड़े हुए, उठा लिया, खा लिया. फॉक्स के पेट भर गए. सो कहानी बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं. व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? सॉरी, अपॉर्चुनिटी का यूज करना. वेल, दैट्स वन नाइस वे टू से इट, बट लॉट ऑफ द टाइम पीपल से इज दैट आप कीचड़ में है तो चुप बैठो. ओके, बट आई ऑलवेज लाइक टू से, आप लोगों के पास एक ग्लास में होगा, आपका यू हैव टू थिंक डिफरेंटली. आपके पास एक ग्लास होगा, उसमें आधा पानी है. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल से ग्लास हाफ फुल है, हाफ एम्प्टी है. मैं आप लोगों को इतना बता देता हूं, आपको ऐसा सोचना चाहिए कि ग्लास इज ऑफ द रॉन्ग साइज. आपको इतना पानी पीना तो आप वही वाला ग्लास यूज करिए. बड़ा ग्लास लेके उसमें आधा पानी क्यों पीना है, राइट? तो इसके सो व्हेन यू थिंक अबाउट द स्टोरी, आप एक बात समझ लीजिए, आपके ऊपर कीचड़ बेचने वाला लोग, आपके ऊपर कीचड़ बेचने वाला हर लोग आपका दुश्मन नहीं होते. इसमें चिड़िया के ऊपर जो गंदगी डाला था काऊ, उसका दोस्त था. काऊ वाज द वेल विशर. और जो जितने सारे लोग आपको कीचड़ से निकालते हैं, वो आपका दोस्त भी नहीं, राइट? So when you are going and presenting your exhibition, sometimes the judges will give you harsh comment. Okay? They are not your enemies. आपका भलाई के लिए कर रहा होगा. और somebody will come and tell you that नहीं आपको इतना अच्छा बनाया, अरे पता नहीं आपको फर्स्ट प्राइज क्यों नहीं मिला. They may not be your friends either. So when somebody tells you, when you want to go and change the world big time, be prepared to fail miserably. Okay? So
And once, every time when we were working on our UAV, पहला वाला अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाया था, अभी ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुआ था, we were working on it 2012 में. तो लोग बोलते पेपर प्लेन उड़ा के दिखाओ किया. और फर्स्ट एवरीबडी टॉक्स अबाउट 2013 में हम जब फ्लाई किया था, वीडियो साथ है. उसके पहले जो 21 क्रैश हुए थे, कोई नहीं बोलता. बार बार गिरा के तोड़ फोड़ करके हमने सीख लिया. बट आई चेरिश द 21 crashes. The 21 crashes taught me what didn't work, how can I make it better. So now when people say आप इसको 40 किलोमीटर फ्लाई करो, आंख बंद करके हम फ्लाई करो. So use this as a learning opportunity. And again, welcome to IIT Kanpur. I forgot to tell you this, many of the people who are not from Kanpur and around, this is one of the oldest lecture halls in this campus. Okay. I really hope I get to see you guys. Most of you are what, 8, 9 standard, 10 standard? 11 standard. Okay. So in another, I would say 3 years or so, I really hope and wish and pray that most of you come and sit here in this campus as students of IIT Kanpur. Hopefully you will hear lecture from me and ये सारे पागल सुबह के हमारा दिमाग नहीं. जो my Hindi is like that already. मेरे क्लास में यही होता रहता है आधे टाइम पे. बट आप लोग चिंता मत करिए इसका. प्लीज वर्क हार्ड टू बी ए स्टूडेंट ऑफ दिस कैंपस. इसी सीट में बैठ के आप पढ़ लीजिए प्लीज. एंड लाइफ आगे लेके जाके अच्छा करिए, देश को आगे बढ़ाइए. आगे बढ़ाने के बाद एक न एक दिन, अभी ट्रम्प साहब तो हमारे लिए 50% टैक्स लगा रहा है. आप लोग बड़े होके ट्रम्प साहब को 50% टैक्स लगा दीजिए. आप लोग खुश हो. कहते हैं कि सफलता के लिए सरलता और सहजता होनी बहुत जरूरी होती है. सर की बातों में वही सरलता और सहजता मुझे दिखाई दिया. 4 पंक्तियां हैं सर के लिए. आए हैं आप घर तो मधुबन महक उठा, दिल झूम सा उठा, मन प्राण गा चले. चाहा थामने थाम ले उद्गार हृदय के, पर क्या करे ये बावरा मन को घूम पड़ा. तो बहुत अच्छा लगा सर. बहुत सारी बातें, बहुत जमीन से जुड़ी बातें. सर ने कहा हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी हिंदी है सर आपकी. 2 पंक्तियां. अपनी कद्रदानी को इस तरह से न छुपाइए. अगर सर की बातें अच्छी लगी तो एक बार फिर से जोरदार तालियां. First, respected अतिथिगण, शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, सभी को आज की शुभ प्रभात इस IIT कैंपस में. केंद्रीय विद्यालय IIT कानपुर परिवार की ओर से मैं 53वीं संभाग स्तरीय लखनऊ संभाग की राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025-26 के इस अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई. सबसे पहले मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे और आप सबको मिली कि हम यहाँ पर एक साथ उपस्थित हैं पूरे लखनऊ रीजन के साइंटिस्ट, यंग साइंटिस्ट के साथ. इसके साथ मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय IIT कानपुर के प्रबंधन विभाग विज्ञान विभाग के प्रोफेसर दीपू फिलिप जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ. सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन किया. इसके लिए हम आपके ऋणी हैं. मैं हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय केंद्रीय विद्यालय लखनऊ संभाग के सहायक आयुक्त श्री अनूप अवस्थी सर का विशेष धन्यवाद करती हूँ, जिनका सहयोग एवं मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहता है. इसके साथ ही मैं विद्यालय के चेयरमैन सर की आभारी हूँ, जिनके संरक्षण में हम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर पाते हैं. इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए मैं निर्णायक मंडल के सदस्यों और कानपुर के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों से आए अतिथिगण का धन्यवाद करती हूँ. मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमारे मेजबान प्राचार्य महोदय श्री RC पांडे सर का, जिनके कुशल नेतृत्व और योजना के कारण ही हम इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कर पाते हैं.
सर बहुत सारे इवेंट हमारे विद्यालय में संपन्न कराते हैं, सभी को पता होगा। एंड आई एम प्राउड प्रिविलेज कि मैं इस केवी की एक सीनियर शिक्षिका हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस तरह के इवेंट से। इससे पहले एक HC वर्मा सर का भी सेशन हुआ था, तब भी हम यहाँ पे एकत्रित हुए थे। आज मैं उन मोमेंट्स को भी याद कर रही थी। ये सब क्षण हमारे जीवन के लिए अविस्मरणीय है और हम लगातार सीखने की कोशिश करते हैं। और सर हमारे इतने वर्सेटाइल हैं कि इस तरह के बहुत सारे अवसर सर RO से और संगठन से ले लेते हैं, ग्रिप कर लेते हैं और हम लोगों को ये मौका देते रहते हैं। थैंक यू सर। एंड लखनऊ संभाग के बाद विभिन्न विद्यालयों से आए हमारे स्कॉट टीचर्स, जिन्होंने अपनी फैमिली और सबको आज के लिए बाय बाय करके यहाँ पर हैं। हमारे उन छोटे बच्चों के साथ हैं जिनको आगे बढ़ने का वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत आभार। और ये बच्चे जिनके लिए आज ये आयोजन सभी ने मिलकर किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी का ये IIT कानपुर में स्टेप बहुत अच्छा रहेगा और हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि आप यहाँ पे अच्छे से रहें, खुशी से रहें और प्यार बांटते प्यार पाते चले जाएंगे। अंत में इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के सदस्य, शिक्षक और सभी सहायकों का या जो परोक्ष अपरोक्ष रूप से यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित हुए और अभी नहीं यहाँ पर भी है इस प्रीमिसेस में तो वो कर रहे हैं अपनी मदद, उन सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का लास्ट में बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे भेदाः। Today marks the culmination of weeks of hard work, and we sincerely hope that you enjoy, appreciate, and feel inspired by the minds of our friends. As we move towards the conclusion of today's event, I request everyone to please rise for national anthem to honor our nation. सभी एक साथ शादान पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। All the escorts and students are requested to be seated at their places. अरे भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे MMB अरे भाई ये MMB क्या है? MMB क्या है तो चलिए देखते हैं, हम सभी लोग देखते हैं ये MMB है क्या। तो बच्चों आज मैं आपको बताता हूँ MMB का मतलब होता है माई मिस्टेक बिलोंग। इस हिंदी में कहते हैं मेरी गलतियों का वीडियो। दोस्तों बने रहिए खेलने से पहले और खेलने के बाद माई मिस्टेक ब्लॉग के साथ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में MMB के साथ और आप और हम। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।